Hello everyone, welcome to our channel Biochemistry Guide. Today we will learn about the topic lipids and its classification. So let's start the topic. Before starting the topic, we will see what this video contains. So first of all, we will discuss about the definition. Secondly, we will discuss the structure and the function of lipids, because we have to know what is why is lipids are very much important for our body. Okay, and we will see about the classification of lipid, introduction to the simple lipids, and after that we will see in the end we will see the introduction of compound lipids. So let's start the video. First of all, we will see the introduction. The term, what does term lipid means? So lipid refers to the This lipid refers to a structurally diverse group of molecule. What does it mean? It means that lipid जो होता है वो रिफर किसे करता है? स्ट्रक्चरली जो डाइवर्स ग्रुप होते हैं उन ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो कि सॉल्युबल हो किसमें? नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में. इसका एक एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म. द लिपिड रिफर टू अ स्ट्रक्चरली डाइवर्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर प्रेफरेंशियली soluble in a non-aqueous solvent such as chloroform. Okay, got it? So let's start. Lipids include a wide variety of fatty acid derived compounds as well as many pigments, secondary compounds that are metabolically unrelated to fatty acid metabolism. So lipids are consist of wide variety of fatty acid derived compounds, and it is also consists of pigments. It made pigments and the secondary compounds. These secondary compounds are metabolically unrelated to fatty acid metabolism. So from this statement we can understand that whatever the metabolism of secondary compounds are, they are totally unrelated. They are not related to the fatty acid metabolism. Okay, now what is the definition of lipid? तो लिपिड का डेफिनेशन क्या होता है? लिपिड्स आर डिफाइंड बाय लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड हाई सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो लेट्स मार्क इट. Lipids are defined by low solubility in water. Lipids की जो solubility होती है वाटर में, पानी में, बहुत ही कम होती है, लो solubility होती है. And high solubility किसमें होती है? इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. तो लिपिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सबसे कम लो सॉल्युबिलिटी इन कहाँ होती है? वाटर में, और हाई सॉल्युबिलिटी पाई जाती है नॉन पोलर सॉल्वेंट में. दीज वाटर इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर. तो ये जो इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि लिपिड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कहाँ से? सेल से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के हेल्प से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सेल. और ये सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं? ईथर हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, और बेंजीन. और भी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है, now we will see the structure and function of lipids. So let's start and seeing about the structure and the lipid functions. So first of all, in structure we will see in this diagram, we can see there is a head which is hydrophilic in nature, and these are the tail of the lipid which are hydrophobic
in nature. Okay, so this is the structure of our lipid. It consists of head and tail. Head having a nature of hydrophobic, means water hater, and this head is water hydrophilic, that is water loving. Lipids serve many functions in plant as the major component of biological membrane. So लिपिड क्या होता है? लिपिड काफ़ी सारे फंक्शंस प्लांट में करता है, जिसका सबसे पहला एग्जांपल क्या है कि ये बायोलॉजिकल जो हमारी मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स की, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये उसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। एंड दे फॉर्म अ हाइड्रोफोबिक बैरियर, और ये क्या बनाता है? हाइड्रोफोबिक बैरियर बनाता है, दैट इज़ क्रिटिकल टू लाइफ। मेम्ब्रेन नॉट ओनली सेपरेट सेल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ये मेम्ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग से नहीं हमें सेपरेट करता है, दे ऑल्सो सेपरेट द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनेल, जो ऑर्गेनेल्स के अंदर कंटेंट होता है उससे भी सेपरेट करता है। सच एज, मान लो ऑर्गेनेल्स कौन कौन से नाम एग्जाम्पल्स हैं, सच एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा फ्रॉम द साइटोप्लास्ट। सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन डिपेंड ऑन पोलर लिपिड्स, ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है, डिवाइड हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है पोलर लिपिड्स के नेचर पे, ठीक है। फॉर्मिंग ए बाइलेयर दैट प्रिवेंट, ये क्या प्रिवेंट कर रहा है? फ्री डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल between the cellular organelles and prevent diffusion of in and out of the cell. Okay, the membrane of chloroplast, in which the light reaction of photosynthesis take place, primarily contain galactolipids. So क्लोरोप्लास्ट में जो लिपिड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? गैलेक्टोलिपिड्स कहते हैं। गैलेक्टोलिपिड्स एक पार्ट है लिपिड्स का, जो कि अभी हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तो गैलेक्टोलिपिड जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद क्या आता है? मेम्ब्रेन, जो कि प्लास्टिड की जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनता है? वो बना होता है फॉस्फोलिपिड्स से। तो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? गैलेक्टोलिपिड से। और जो प्लास्टिड की मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड से बनी है, ठीक है ना। आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ लिपिड के बारे में। तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, ये सबसे सिंपलेस्ट जो हमारा लिपिड होता है उसका नाम होता है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल आर लार्जली हाइड्रोफोबिक एंड एग्जिस्ट इन एन एसेंशियली एनहाइड्रस एनवायरनमेंट। तो ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा ही हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और अनहाइड्रस इन्वायरमेंट होती है, यानी कि जहाँ पे वाटर की प्रेजेंस ना हो उस इन्वायरमेंट में ये एग्जिस्ट करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, द कार्बोहाइड्रेट हाउएवर आर हाइड्रोफिलिक। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल हमने डिस्कस कर लिया है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और क्या होता है? ये एसेंशियली नॉन अनहाइड्रस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी वाटर लवर होते हैं। इनमें वाटर जो होता है वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण इसकी मास इंक्रीज हो जाती है। Thus on a mass basis, the ATP yield from the catabolism of CO2 and H2O is approximately twice as high for triacyl glycerol as for the carbohydrates. तो इसमें क्या होता है कि उसका मास ज़्यादा होने के कारण कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते एज़ कंपेरिजन टू ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी है
जो ATP हम जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम द शुगर, और यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं ATP को फ्रॉम द फैटी एसिड। तो फैटी एसिड से हमें ATP जो एनर्जी है वो अप्रॉक्स कितना मिल रहा है, 106 मोल, और यहाँ पे हमें 30 से लेके 32 तक का ATP मोल में मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है बिटवीन द ATP जनरेटेड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम टू द comparing to that ATP generated from the fatty acid. The fatty acids are also the precursor for other significant component of plant metabolism. सो फैटी एसिड और क्या करते हैं, फैटी एसिड प्रिकर्सर का काम करते हैं कि दूसरे कंपोनेंट जो कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट हो उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये प्रिकर्सर का काम करते हैं। प्रिकर्सर यानी जिससे वो कंपोनेंट या फिर कंपाउंड कह लो या सब्सटेंस कह लो वो बनना शुरू होता है, उसे प्रिकर्सर कहते हैं। ठीक है, फिर द वैक्सेस दैट कोट एंड प्रोटेक्ट प्लांट from the environment are complex mixture of long chain hydrocarbon, aldehyde, alcohol, acid, ester derived almost entirely from fatty acid. तो जो वैक्स कोटेड होती है हमारे प्लांट के ऊपर, प्रोटेक्शन का जो काम करती है, इन्वायरमेंट से हमारे प्लांट्स को बचाती है, उसका भी जो बना वो जिस कंपाउंड से बनी होती है वो क्या होती है, वो भी फैटी एसिड होती है। और ये किससे डिराइव हो सकती है, एस्टर से, अल्कोहल से, या फिर एसिड से, या फिर हाइड्रोकार्बन या एल्डिहाइड से, इन सब से डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, क्यूटीन लेयर हम जानते हैं एपिडर्मल सेल में पाई जाती है, वो भी किससे कंपोज होती है, वो ऑक्सीनेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड जो कि एस्टरिफाइड होता है विथ वन अनदर टू प्रोड्यूस अ टफ एंड पॉलीएस्टर स्किन। तो फिर ये भी फैटी एसिड से, जो क्यूटीन लेयर होती है वो हमारी एपिडर्मल सेल्स की, वो भी फैटी एसिड से बनती है। ठीक है, दस इन एपिडर्मल सेल ऑफ एरियल ऑर्गन्स द बल्क ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इज डिवोटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्स क्यूटीन फॉर प्रोडक्शन। ओके, नाउ सम फैटी एसिड प्ले मेजर रोल इन सर्टेन सिग्नल ट्रांजैक्शन। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या फंक्शंस देखे लिपिड्स के, हम लोग ने लिपिड के क्या क्या फंक्शन देखे हैं कि लिपिड्स जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में इम्पॉर्टेंट होता है हमारे प्लांट्स के लिए, और हमारे प्लांट्स के लिए प्रिकर्सर का भी रोल निभाता है। जो वैक्स और जो क्यूटीन लेयर होती है वो भी किससे बनी हुई है, वो भी बनी हुई है फैटी एसिड से। अब यहाँ पे लिखा है कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन जो पाथवेज होती है उसमें भी मेजर रोल निभाता है। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर जैस्मोनिक एसिड फ्रॉम द लिनोनिक एसिड। लिनोनिक एसिड क्या होती है, ये भी एक फैटी एसिड होती है। तो जैस्मोनिक एसिड जो कि लिनोनिक एसिड से बनी होती है, और ये क्या काम करती है, द एक्टिविटीज़ ऑफ जैस्मोनेट्स एज प्लांट हार्मोन, और ये जो होता है वो हार्मोन्स होता है प्लांट का, और सेकेंड मैसेंजर भी होता है। सेकेंड मैसेंजर यानी जो सिग्नल को ट्रांसडक्ट करे। ठीक है, तो फिर ये जो लिपिड्स होते हैं वो जैस्मोनिक एसिड को बनाते हैं, और ये किससे बने होते हैं, किस फॉर्म ऑफ लिपिड से, लिनोनिक एसिड से ये बने होते हैं। और ये जो जैस्मिनेट होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं और सेकेंड मैसेंजर होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है फॉस्फोटाइडिल इनिसिटॉल एंड इट्स डेरिवेटिव आर मैसेंजर विथ रेगुलेटरी रोल्स। तो ये जो फॉस्फेटिल इनिसिटॉल होता है, फॉस्फोटाइडिल इनिसिटॉल जो है, ये कैसे, ये भी डिराइव होते हैं किससे, फैटी एसिड से डिराइव्ड होते हैं, और ये वर्क करते हैं एज अ मैसेंजर विथ रेगुलेटरी रोल सिमिलर टू द मैसेंजर कंपाउंड फाउंड इन अदर यूकैरियोट्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे। फैटी एसिड may also be involved in regulating various cellular processes via protein acylation. Okay, got it? Now here are some functions of lipid which are
वर्किंग इन द प्लांट्स। तो functions of lipid in plant, these are the function of lipids molecule in plant। फर्स्ट फंक्शन क्या है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो हम लोग ने इससे डिस्कस कर ही लिया है कि मेम्ब्रेन हमारी जो प्लांट की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो कौन सा लिपिड इसमें रोल करता है, ग्लिसरोलिपिड, स्फिंगोलिपिड एंड स्टेरॉल्स, ठीक है। फिर ये स्टोरेज का भी काम करता है, कंपाउंड एक्टिव इन इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस में भी ये इम्पॉर्टेंट होता है, फोटो प्रोटेक्शन में ये इम्पॉर्टेंट होता है। और ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, कौन सा लिपिड किस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं जैसे कि हमें याद करनी है। प्रोटेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन अगेंस्ट द डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, वाटर प्रूफिंग द सरफेस प्रोटेक्शन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, एडिशन ऑफ मेम्ब्रेन एंकर, एसाइलेशन, प्रिनाइलेशन, अदर मेम्ब्रेन एंकर कंपाउंड्स। ग्लाइकोसाइलेशन में भी लिपिड्स रोल का फंक्शन होता है। सिग्नलिंग, तो हम लोग ने सिग्नलिंग के बारे में भी डिस्कस किया था। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफेंस एंड एंटी फीडिंग कंपाउंड्स। तो ये सारे यहाँ पे दिए हुए एग्जाम्पल से लिपिड, कौन से लिपिड्स कहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन करते हुए दिखेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो क्लासिफिकेशन लिपिड्स का जब हम करते हैं तो इसे हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, पहला है सिंपल लिपिड्स, दूसरा है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और तीसरा है प्रिकर्सर एंड डेराइव्ड लिपिड्स, ओके। तो इस वीडियो में हम सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड के बारे में बात करेंगे और प्रिकर्सर और डेराइव्ड लिपिड्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। सिंपल लिपिड्स में क्या क्या आते हैं, सिंपल लिपिड्स जो होता है इसमें 3 तरह के ये सिंपल लिपिड्स होते हैं। सबसे पहले फैट्स, फिर ऑयल और क्या होता है इसमें वैक्स। ये तीनों किस में आते हैं, सिंपल लिपिड्स में आते हैं। लिपिड कंटेनिंग ओनली फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन अल्कोहल्स आर कॉल्ड सिंपल लिपिड्स। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई। विच इंक्लूड्स फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस। तो इस कितने टाइप के हो गए, फैट्स हो गया, ऑयल हो गया और वैक्स हो गया। तो फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल जो होता है वो सिंपलेस्ट लिपिड कंस्ट्रक्टेड होता है फ्रॉम द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बना हुआ। 2 चीज़ से बनता है, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल जो होता है वो सिंपलेस्ट हमारा फैटी एसिड होता है, सिंपलेस्ट लिपिड होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज ट्राइग्लिसराइड। इनको और भी किन नामों से जाना जाता है, ट्राइग्लिसराइड, फैट्स एंड न्यूट्रल फैट्स, ठीक है। ट्राइएसिल ग्लिसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड एस्टरिफाइड टू द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल, ओके। When all the 3 fatty acid molecules are of same kind, the triacyl glycerol is said to be a simple triacyl glycerol. Got it? Mixed triacyl glycerol possesses 2 or more different fatty acid. तो इसमें क्या कह रहा है कि जब when all the 3 fatty acid molecule are of same kind, अगर मान लो अगर 3 फैटी एसिड से एक कंपाउंड बन रहा है और तीनों के तीनों सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं सिंपल ट्राइएसिल ग्लिसरॉल, ठीक है। लेकिन अगर वो फैटी एसिड जो 3 फैटी एसिड हम यूज़ कर रहे हैं वो तीनों 2 है या 2 से ज़्यादा है, यानी डिफरेंट हैं, एक जैसे तीनों नहीं हैं, तीनों डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उसको हम नाम देते हैं मिक्स्ड ट्राइएसिल ग्लिसरॉल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है ट्राइएसिल ग्लिसरॉल दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड फैट्स। ऐसे ट्राइएसिल ग्लिसरॉल जो कि सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, उससे फैट कहते हैं, और जो लिक्विड होते हैं उन्हें हम ऑयल्स कहते हैं। तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड फैट्स एंड लिक्विड
triacylglycerol are known as oil. Neutral fats and oil are all mostly composed of mixed triacylglycerol. Fat are usually rich in saturated fatty acid and the unsaturated fatty acid predominant in oil. तो फैट्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का डिफरेंशिएशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि फैटी एसिड जो सैचुरेटेड होते हैं वो कैसे होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट स्टोर देयर लिपिड इन द फॉर्म ऑफ, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं वो लिपिड्स को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ट्राइएसिलग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। स्टोरेज फैट्स और ऑयल्स। अब हम स्टोरेज फैट और ऑयल के, अभी तक हमने किसके बारे में बात की है, फैट्स और ऑयल किस तरीके से वो बने हुए हैं, ठीक है। अब ये जो स्टोरेज फैट्स और ऑयल है वो कहाँ कहाँ प्लांट किंगडम में, प्लांट में कहाँ कहाँ होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। ट्राइएसिलग्लिसरॉल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट किंगडम। ट्राइएसिलग्लिसरॉल जो होता है प्लांट किंगडम में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दे आर फाउंड इन बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव टिश्यू। गॉट इट। नाउ triacylglycerol are normally stored in the endosperm of the seed। तो क्या कह रहा है कि ट्राइएसिलग्लिसरॉल जो होता है वो नॉर्मली कहाँ स्टोर होता है, एंडोस्पर्म ऑफ सीड। ऑल्दो कुछ प्लांट्स में, सम प्लांट्स ऑल्सो स्टोर appreciable quantities of fat in a fleshy food of mesocarp। तो मीज़ोकार्प और एंडोस्पर्म दोनों में ही ये ट्राइएसिलग्लिसरॉल जो फैटी एसिड्स हैं स्टोर्ड होते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एवोकाडो, ठीक है। सम प्लांट लाइक ऑयल पाम स्टोर ऑयल इन बोथ। ऑयल पाम एग्जाम्पल और है, ऑयल पाम जो कि स्टोर ऑयल को स्टोर कहाँ करता है, मीज़ोकार्प और एंडोस्पर्म दोनों में ही स्टोर करता है, ठीक है। एंडोस्पर्म और मीज़ोकार्प दोनों में स्टोर करता है। ऑयल प्रेजेंट एज ड्रॉपलेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सीड सेल। तो ऑयल जो होता है वो ड्रॉपलेट्स की तरह प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, किसमें, सीड के सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और दीज ड्रॉपलेट आर कॉल्ड ऑयल बॉडीज़। और इस ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं, ऑयल बॉडीज़ कहते हैं। और एंड आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो ये जो सीड सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। मोस्ट ऑफ द कॉमन एडिबल ऑयल लाइक ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जिंजली ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सारे जो कॉमन एडिबल ऑयल्स होते हैं इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं, ये फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं, पाल्मिटिक होते हैं, स्टेरिक होते हैं, ओलिक होते हैं, लिनोनिक और लिनोलेनिक, ठीक है। ये सारे ऐसे जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। पाम कर्नल और कोकोनट ऑयल कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मीडियम चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो मीडियम चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोकोनट ऑयल और पाम कर्नल्स में। सीड ऑयल कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो सीड ऑयल होती है उसमें थोड़ा अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट होता है फॉस्फोलिपिड का वो प्रेजेंट होता है। उसमें कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, टोकोफेरॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, टोकोट्राइइनोल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्लांट स्टेरॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज और हमारे डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग पे, ठीक है। अब वैक्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। वैक्स क्या होता है, वैक्स आर एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल। तो इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों ही वैक्स में आ जाते हैं, जो कि लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है।
द कार्बन नंबर ऑफ फैटी एसिड वेरी फ्रॉम 14 to 34। तो इसमें कार्बन नंबर कितने होंगे वैक्स में? अराउंड 14 to 34। और अल्कोहल कितना होता है? 16 to 30। फॉर एग्जाम्पल बी वैक्स इज़ एन एस्टर ऑफ पाल्मिटिक एसिड। जो बी वैक्स होते हैं वो किसके होते हैं? एस्टर होते हैं पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड भी एक एग्जाम्पल है किसका? फैटी एसिड का। इसमें विथ 30 कार्बन अल्कोहल प्रेजेंट होता है और ट्राई कॉन्टेनोल ये प्रेजेंट होता है। वैक्सेस आर अ चीफ स्टोरेज। वैक्स जो होता है वो चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल इन मरीन फाइटोप्लैंक्टन। तो यहाँ पे स्टोरेज जो हमारी मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स होती है वहाँ पे ये मेटाबॉलिक फ्यूल जैसा काम करता है, इसीलिए इसको स्टोर करके मरीन जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो अपने बॉडी में रखते हैं। बायोलॉजिकल वैक्सेस फाइंड अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। जो बायोलॉजिकल वैक्सेस होते हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल वैक्सेस हैं वो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन हमारे फार्मास्यूटिकल या फिर कॉस्मेटिक्स और या फिर दूसरे तरह के इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी एप्लीकेशंस इसके होते हैं। ठीक है। लिनोलिन फ्रॉम लैम्प्स वूल, बी वैक्स फ्रॉम कार्नाबा वैक्स, स्पर्मेटिसिटी ऑयल्स फ्रॉम वेल्स। जो स्पर्मेटिसिटी ऑयल्स होते हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं? वेल्स से। लिनोलिन जो होता है, लैलोनिन जो होता है वो लैम्प्स के वूल से पाए जाते हैं। और कैनोबा जो वैक्स होता है वो बी वैक्स से पाया जाता है। ठीक है। वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लोशन। ये सब यूज़ किस में किया जाता है? हम लोग किस में यूज़ करते हैं? लोशन बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में या पॉलिशेस बनाने में। वैक्स आर नॉट ईजली हाइड्रोलाइज लाइक फैट्स एंड डाइजेस्टेड बाय लाइपेजेस। तो जैसे कि हम फैट्स जो अभी हम लोग पहले डिस्कस किया है लिपिड के पार्ट्स के बारे में, सिंपल लिपिड्स के पार्ट के बारे में, फैट्स, उस तरह से अगर फैट्स को हम इजीली हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द लिपिड लाइपेजेस, लेकिन वैक्स को हम इजीली हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं लाइक द फैट्स। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द कंपाउंड लिपिड्स। तो कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड लिपिड्स कंटेन certain chemical groups in addition to alcohol and fatty acid। तो सिंपल लिपिड से हम लोग ने देख लिया फैटी एसिड और किससे बन रहा था? ग्लिसरॉल से बन रहा था। लेकिन कंपाउंड लिपिड जो होते हैं वो किससे बनते हैं? कंपाउंड लिपिड जो होते हैं, द लिपिड कंटेन सर्टेन केमिकल ग्रुप्स। कुछ केमिकल ग्रुप्स उससे आकर जुड़ जाते हैं, किससे? फैटी एसिड और अल्कोहल से। तो हमें उससे क्या कहते हैं? कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। इस ग्रुप में कौन कौन इंक्लूड है? जैसे कि नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स एंड लिपोलिपिड्स। ये जो 5 हैं, ग्लिसरो, स्फिंगो, ग्लाइको, सल्फो और कौन से? लिपो। ये 5 किसके पार्ट हैं? ये सब कंपाउंड लिपिड्स के पार्ट है। ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड लिपिड। तो कंपाउंड लिपिड का सबसे पहला पार्ट हम लोग ने देखा, कौन कौन से थे? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड लिपिड्स। तो हम लोग ने अभी देखा कि कौन कौन से पार्ट थे कंपाउंड लिपिड्स में। पहला है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो होता है ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसका? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का। और ये किससे बना होता है? ये ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेरिक एसिड और नाइट्रोजन बेसिस से बना हुआ होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। और डिपेंडिंग ऑन द अल्कोहलिक रेसिड्यूज, जो अल्कोहलिक रेसिड्यूज इससे जुड़े हुए होते हैं
किससे जुड़ते हैं? फॉस्फेटिक एसिड से जुड़ते हैं। फॉस्फेटिक एसिड से जो अल्कोहलिक रेसिड्यूज जुड़ते हैं उसके बेसिस पे इसे अलग अलग नाम दिया गया है, यानी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है? फॉस्फेटिल कोलिन, दूसरा है फॉस्फेडिन, इथेनॉल अमाइन, फिर तीसरा है फॉस्फेडिल सेरीन, फॉस्फेडिल इनिसिटॉल एंड फॉस्फेडिल ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये फॉस्फेटिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप है जिससे क्या अटैच है? कोलिन अटैच है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एसिड है जो कि अटैच किससे है? फॉस्फेटिक एसिड से। और ये क्या है? ग्लिसरॉल एंड दिस इज अ फैटी एसिड। इसी तरह सारे डायग्राम में ये फैटी एसिड, ये ग्लिसरॉल, ये फॉस्फेटिक एसिड, ये इथेनॉल अमीन। ठीक है, ये पूरा डायग्राम किसका है? फॉस्फेडिल, इथेनॉल अमीन, फॉस्फेडिल कोलिन, और क्या है? फॉस्फेडिल सेरीन, फॉस्फेडिल इनिसिटॉल, प्लाज्मालोजन, लाइसोलेसिथिन एंड कार्डियोलिपिन। ठीक है, now we will see the what is sphingophospholipid। sphingophospholipid क्या होते हैं? तो they are important constituent of myelin and are abundantly found in brain and nervous tissue। it consists of sphingosine as alcohol। तो इसके जो डायग्राम है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, कोलिन प्रेजेंट है, और फैटी एसिड है और स्फिंगोसिन की पूरी चेन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है। और ये इम्पॉर्टेंट मेंबर किसका है? माइलिन शीथ का है। माइलिन शीथ कहाँ पाई जाती है? नर्व्स में पाई जाती है। और ये अबंडेंटली हमारे ब्रेन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्रेन और नर्वस टिश्यू का एक पार्ट है, पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, the phosphate and fatty acid are attached to alcohol that is sphingosine instead of glycerol। यहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं प्रेजेंट होता है, स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है। the fatty acid are attached through the amide linkage। यहाँ पे amide linkage से फैटी एसिड अटैच होता है, ना कि एस्टर बॉन्ड से। ठीक है, द बेस प्रेजेंट इज नॉर्मली कोलिन। यहाँ जो बेस प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस, हम लोगों ने डिस्कस किया था किस किस से बना है? हमारा कंपाउंड लिपिड नाइट्रोजनस बेस हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, फॉस्फेटिक एसिड हो गया, इन सब से चीज़ों से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो बेस प्रेजेंट है वो क्या है? कोलिन है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे नॉर्मली कोलिन प्रेजेंट होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट कंपाउंड स्फिंगोसिन एंड फाइटोस्फिंगोसिन आर शोन बिलो। तो जो इसका पेरेंट कंपाउंड होता है वो क्या होता है? स्फिंगोसिन होता है और फाइटोस्फिंगोसिन होता है। सेरामाइड इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट कॉमन टू ऑल स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो एक सेरामाइड स्ट्रक्चर होता है जो कि फंडामेंटल यूनिट होता है किसका? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स are found in the seed of several plant species। डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के सीड्स में ये पाए जाते हैं। ना ग्लाइकोलिपिड एंड सल्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स और सल्फोलिपिड क्या होते हैं? तो ग्लाइकोलिपिड आर स्ट्रक्चरली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर मोनोसैकेराइड रेसिड्यू एंड द एब्सेंस ऑफ फॉस्फेट। तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है कि यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। और मोनोसैकेराइड कौन कौन से हो सकते हैं? डी ग्लूकोस हो सकता है, डी गैलेक्टोस हो सकता है, एनएसिटिल डिग्लूकोसामाइन। ये सारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पे एब्सेंस होता है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है? स्फिंगोसिन प्रेजेंट है, फैटी एसिड है ये पूरा। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है। मोनोगैलेक्टोसिल डाइग्लिसराइड्स एंड डाइगैलेक्टोसिल डाइग्लिसराइड्स। मोनोगैलेक्टोसिल डाइग्लिसराइड और डाइगैलेक्टोसिल डाइग्लिसराइड्स have been shown to be present in a wide variety of higher plant tissues।
ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोनोग्लाइकोसिल डाइग्लिसराइड और डाइग्लाइकोसिल डाइग्लिसराइड, ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाई वैरायटी ऑफ प्लांट टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द प्रीडोमिनेंट फैटी एसिड प्रेजेंट इन सल्फोलिपिड्स इज लिनोलिक एसिड। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ फैटी एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है लिनोलिक एसिड होता है। ठीक है, द सल्फोलिपिड इज मोस्टली प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। सल्फोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में मेनली प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीडोमिनेंटली इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं वहाँ पे ये सिचुएटेड होता है। सेरेब्रोसाइट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ मोनोसैकेराइड। जो सेरेब्रोसाइट्स होते हैं वो किसका बना हुए होते हैं, वो मोनोसैकेराइड से बने होते हैं और रेसिड्यू ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड टू C1 often and acetylsphingosine derivatives. The monosaccharides in D-glucose in plant और D-galactose in animals। तो जो D यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड है, ये जो मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से कंटेन करता है, मोनोसैकेराइड डी ग्लूकोज कंटेन करता है, और ये जो गैलेक्टोज यहाँ पे दिखाया हुआ है वो कौन कंटेन करता है, ये एनिमल का है, एनिमल कंटेन करता है। ठीक है, now we will discuss about, this is the last topic of this video, we will discuss about the lipoproteins। lipoproteins क्या होते हैं, lipoproteins के पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका हेड के बारे में डिस्कस किया है, टेल के बारे में डिस्कस किया है। टेल जो है किस नेचर का होता है, टेल जो है, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लवर, और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। तो जो सरफेस होती है लिपिड के हेड की वो किससे इंटरेक्ट करती है, वाटर से इंटरेक्ट करती है, लेकिन जो टेल होता है वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, द प्रोटीन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ट्राईएसिलग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड आर कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स। ओके, गॉट इट। नाउ triacylglycerol derived from intestinal absorption or from the liver are not transported in the free form in the circulating blood plasma। जो ट्राईएसिलग्लिसरॉल जो होते हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किस प्रोसेस से, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर लीवर से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड प्लाज्मा में जाके नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट दे मूव एज अ काइलोमाइक्रॉन्स, लेकिन वो कैसे आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स हमारे ब्लड में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज़ VLDL, और एज फ्री फैटी एसिड्स, इसको हम फ्री फैटी एसिड्स भी कहते हैं, albumin complexes। Beside two more physiological important group of lipoproteins are, that is low density lipoproteins and high density lipoproteins। दो तरह के हैं, कौन कौन से, low density lipoproteins और high density lipoproteins। The major lipid component of chylomicron and VLDL are triacylglycerol, whereas the predominant lipid in LDL and HDL are cholesterol and phospholipid respectively। तो VLDL जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पेशली ट्राईएसिलग्लिसरॉल। ठीक है, और जो LDL जो लो डेंसिटी लिपिड्स और हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ लिपोप्रोटीन इज नोन एज एपोप्रोटीन। तो ये क्या है, ये एपोप्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन पार्ट ऑफ लिपोप्रोटीन। ओके, लिपोप्रोटीन अकर इन मिल्क, एग yolk एंड ऑल्सो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो लिपोप्रोटीन को हम कहाँ पाया जाता है, कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लिपोप्रोटीन्स को, अगर हमें कोई ज़रूरत हो तो लिपोप्रोटीन मिल्क में पाया जाता है, एग yolk में पाया जाता है, और ये एक कंपोनेंट है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। सो
Thank you everyone. I hope you get this topic.